हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 7, रूट 11, रूट 48, रूट 50, रूट 100, रूट 71, different type of number on the number line. And students, you all know that if any prime number is given on the under root, then that number is always an irrational number. We have discussed about it, and the basic properties of irrational, basic properties of rationals we already discussed in the previous video. And yes, if you are new in the channel, so please go and watch that videos in the playlist. So yes, moving forward, today we are going to discuss how to represent root of decimal numbers. Okay, last day we have discussed root of 2, root of 3, root of 7 like this. But how to represent root of 2.1, how to represent under root 7.5, how to represent under root 8.3. So like these numbers we are going to start today. And yes, I hope that you are writing everything on your notes copy for best preparation and for the best result. So yes, moving, first of all write one question, then we'll start today's class. And the question is represent, I hope that screen is visible. Okay, तो बच्चों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप वीडियो रेगुलरली नहीं देख रहे हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ या फिर जो चीज़ें एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हो, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो एक रिकमेंडेशन है कि नहीं, आप डेली बेसिस पे फुल वीडियो देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी किया करिए, राइट। सो रिप्रेजेंट, आई एम टेकिंग वन नंबर 7.5 ऑन द number line. Okay, so today we are going to represent root 7.5 on the number line. Yes, similarly you can represent different type of number on the number line, different decimal numbers on the number line. Okay, so this is root 7.5 and we have to represent this number on the number line. So first of all, how to write the step. So I will discuss basic steps, then we'll move to the next thing, right? So first of all, draw, I'm writing steps here. First of all, what you will do, you will draw a line segment AB having 7.5 centimeter. This is 7.5 centimeter. Draw, first step what you will do, draw AB equal to 7.5 centimeter. Here 1 unit equal to 1 centimeter. I am taking 1 unit equal to 1 centimeter in this problem, right? Then extend AB up to C such that BC is equal to 1 centimeter. Now you have to extend AB up to C like this. And yes, remember, this BC part is 1 centimeter, right? So it is 7.5 centimeter and now it is 1 centimeter. And yes, if it is 1 centimeter, so whole AC will be 8.5 centimeter, no doubt, right? Good. So extend AB up to C such that BC is equal to 1 centimeter. Now, perpendicularly bisect AC. Okay, so now you have to perpendicularly bisect AC. Do you know how to perpendicularly bisect any line segment? Let me explain. Suppose this is the line segment. Okay, so for perpendicularly bisection, take first end and more than half distance, cut one arc here, second here and here. Now join this. So this is the midpoint, and yes, of course the angle will be 90 degree, no doubt. So this is said to be perpendicularly बाइसेक्शन मीन्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना, 90 डिग्री एंगल भी बनेगा और वो मिड
पॉइंट भी मिल जाएगा जहां से बाइसेक्ट हो जाएगा। तो टेक सेंटर ए, कट वन आर्क हियर एंड सिमिलरली वन आर्क हियर, सी वन आर्क हियर एंड यस ज्वाइन दिस टू। Here it is, suppose it is M. So AM equal to MC. So here AM is equal to MC, and the reason is very clear because this line is perpendicular bisector, right? Now take fourth step. Take center at M and radius AM, draw semicircle. What you will draw here? Semicircle. So center at M, यहां M को सेंटर बनाना है, सेंटर बना के आपको एक ऐसे सेमी सर्कल बना देना बाबू, ठीक है? सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है? अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, स्टेप्स देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको रूट में नंबर दिया गया है उतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ओके? फिर लाइन को एक्सटेंड करो अप टू 1 मोर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ज्यादा एक्सटेंड करो। और बच्चों एक्सटेंड करने के बाद क्या करना है, जो आपको टोटल लाइन मिल गया उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दो बिना कुछ भी सोचे। परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन का मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, नहीं सीखा है तो मैंने मेथड यहाँ डिस्कस किया है। आपको 90 डिग्री बनाना है और मिड पॉइंट ढूंढना है, तो इस मेथड से आप ढूंढ सकते हैं। अब जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के बाद आपको मिला पॉइंट, वहां से आप एक ड्रॉ कर दीजिए सेमी सर्कल। आपको क्या करना है, यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। वो अभी तक कोई भी डाउट है? अभी तक कोई भी डाउट है? क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, उसके बाद क्या करो, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो, मिड पॉइंट लो, सेमी सर्कल बना दो, सेमी सर्कल बना दो, ठीक है? सेमी सर्कल बन गया। अब आगे देखो, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, फिफ्थ स्टेप देखो। आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू। लेट मी चेक वंस, अदरवाइज आई विल राइट बट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम राइटिंग। ओके, सो नाउ ड्रॉ perpendicular means 90 degree, perpendicular at B। अभी आपको B पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B मींस जो आपने AB लिया था उसके दूसरे एंड पे। एक बात याद रखना, ये जो AC है ये हमारा डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे AC क्या हो जा रहा है, डायमीटर हो जा रहा है। AC क्या हो जा रहा है, डायमीटर हो जा रहा है। और B पर अब ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का भी मेथड है। यहां रखा, एक आर्क लगा, यहां 60 डिग्री बना, 120 बना, 60 120 का मिड लिया, ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री। तो अब डायरेक्ट यहां पर 90 डिग्री एक बनाएंगे, ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है? और सपोज करो कि ये कहां कट कर रहा है, एट B, विच इंटरसेक्ट्स सर्कल, semicircle at where D पर इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है? अब एक बात सुन लो, काम खत्म हो चुका है। ये जो आपका BD है ना, यही हमारा क्या होगा, BD इज √7.5। अगर इसको मेजर करोगे ना तो आएगा √7.5। तो आपके पास अब दूसरा ऑप्शन है, आप दूसरा नंबर लाइन बनाइए, 1 सेंटीमीटर यूनिट लीजिए, वहां पर इसको मेजर करके कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं। अभी B को क्या बना दो, 0 बन गया B, C बन जाएगा 1, और फिर इसी को एक्सटेंड कर दो आगे, ठीक है? कहां तक, 1 सेंटीमीटर पे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 1 सेंटीमीटर मार्क करते जाओ। और यहां से करना है B को सेंटर लेके A इसको ऐसे, तो जहां ये कट किया भाई वो क्या हो जाएगा, √7.5। पॉइंट क्या मिल गया, √7.5। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, नाउ BD इज इक्वल टू √7.5, ठीक है? BD क्या है, BD इज √7.5। BD क्या है बाबू, BD इज √7.5। तो यहां पर जो आपको BD मिला, ये BD आप ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो यहां पर ए BD क्योंकि रेडियस हो जाएगा, तो फिर से BD मिलेगा जो कि हमारा 7.5 होगा। आप चाहें तो अलग से एक नंबर लाइन बनाएं
इस पे आप 1 सेंटीमीटर 0 1 2 3 एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। यहां से मेजर करिए, आर्क को 0 पे रख के कट कर दीजिए, जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा हो जाएगा √7.5। बहुत समझ में आया? ठीक है, एक्चुअली हमने कोई मेजरमेंट करके नहीं किया, लेकिन आपका एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। स्टेप बहुत ईजी है, मैं फिर से बता देता हूँ। मैं हट जा रहा हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टेप्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, सो यस, let me explain once again. First of all, whatever the number given under the root, take that distance in centimeter. You can take in meter, but remember meter बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? So take that in centimeter. Now extend 1 more centimeter in that distance. जो आपने लिया है लाइन सेगमेंट, उसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, ठीक है? और बाकी काफ़ी समझदार हो आप लोग, समझ भी रहे हो बातों को, ठीक है? तो पहले क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर लेना है, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको एक घुमा के सेमी सर्कल बना दो। सेमी सर्कल बनाते ही क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है? सेमी सर्कल बनाने के बाद बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, और आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर एट बी, नाउ दिस डिस्टेंस बी डी रिप्रेजेंट √7.5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 7.5, √7.5, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूं, मैं एक बार ओरली ये मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिर से, ठीक है? इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसी को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक बचेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और उसके बाद रेशनलाइजेशन, चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी, ओके? ठीक है, अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं भाई, इसलिए वीडियोस नहीं तेजी से चल रहे हैं, क्लासेस थोड़ा धीरे चल रहे हैं, स्लो प्रोसेस में, हाँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपके लिए और अच्छी फैसिलिटी होगी और बेटर वे में सर्व किया जाएगा चीज़ों को, डोंट वरी। हाँ, बस एक उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद नहीं रखोगे ना, तो उम्मीद नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, उम्मीद नहीं रखने से जो चीज़ें आने वाली है ना वो भी ध्यान नहीं दे पाते हम। बात समझ रहे हैं? कहीं अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, कहीं उतरना है, पहले से ध्यान नहीं दोगे ना तो आगे चले जाओगे, ठीक है? तो एक उम्मीद रखो, चीज़ों को समझते रहो, अच्छा कर रहे हो वैसे आप सब, ठीक है? चलिए, रिप्रेजेंट 11.5 ऑन नंबर लाइन। चलो, प्रॉब्लम मिल गया सर, 11.5 क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी 11.5, क्या करना है इसके बाद, ए बी बन गया। 11.5 करने के बाद स्टेप नंबर 2 देखो क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर ऐड कर देने का, इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करो। आप क्या करिएगा, 1 सेंटीमीटर ऐड करके कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, सी पर पहुंच जाएंगे। अभी AC मिल गया आपको, AC कितना होगा, 12.5, ठीक है, 12.5। अभी AC को क्या करो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। एक बार मैं पूरा बता दूं क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, ए पर रखो, मोर देन हाफ लेना, एक इधर आर्क करो, ठीक है? एक ऐसे बचपन में किया होगा कभी, सेम आर्क, कभी चेंज नहीं करना। सी पे रखो, इधर से करो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? मिला? अभी वाला पॉइंट जो मिलता है ना यहाँ, ए क्या कहलाता है, ए मिड पॉइंट पे टच करता है, इसी को एम मान लो, ठीक है? अभी एम को सेंटर लेके ए एम इक्वल टू एम से आएगा, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट और ए सी इज द डायमीटर, सो एम इज द सेंटर। जो डायमीटर उसका मिड पॉइंट वो सेंटर बनता है। सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बच्चों साथ में काम करो, 2 बार करोगे, तीसरी बार अपने आप होने लगेगा, ठीक है? 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसका, सिर्फ 2 बार रफली कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाना है आपको। 90 डिग्री आपको जैसे बनाना है बना सकते हो, लेकिन एक मेथड है, यहाँ 90 डिग्री बनाना है। आर्क लो, यहाँ से पहला कट 60 डिग्री प्रेजेंट करता है, दूसरा कट 120 करता है, तीसरा करोगे 180 पे पहुंच जाओगे। 60 120 का मिड करोगे 90 मिलेगा, क्योंकि 60 120 का मिड 30 हो जाएगा, 60 में 38 होगा, 90 मिल जाएगा, ठीक है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप प्रीवियस जानते हो, वो अगर यहाँ बताएंगे तो फिर पीछे का क्या होगा, ठीक है? चलो देखो, ये हो जाएगा √11.5। अब आप चाहो तो इसको अलग नंबर पे दिखाओ, अदरवाइज आप चाहो तो यहीं पे इसको ऐसे फॉल करा दो, क्योंकि ये रेडियस है भाई। रेडियस अगर यहाँ से एंटर लोगे तो ये रेडियस बन जाएगा, और रेडियस की खासियत ये है कि पूरे सर्कल में व्हेनेवर यू आर मेजरिंग रेडियस एट एनीवेयर, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बिकॉज रेडियस इज इक्वल एट एवरीवेयर, ठीक है? रेडियस हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है सर्कल में, तो आप बेसिक बात है पहले से जानते हो, तो सिमिलरली हम वैसे कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि क्या इस मेथड से सर √2 को नहीं कर सकते क्या इस मेथड से √5 नहीं हो सकता क्या? सो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई दिस मेथड, एक्चुअली दिस इज द मोर जनरल मेथड।
उस मेथड से जनरल मेथड है। लेकिन बस एक क्वेश्चन है बाबू कि अगर मान लो 51 करना है, 51 करना है तो यहाँ कहाँ 51 करने जाओगे बताओ? 51 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर पाओगे? है ना? तो आपको कैसा लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कि 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 51 करोगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उससे भी छोटे यूनिट बना सकते हो, इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन यू। तो आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई दबाव नहीं। हाँ, एक और बात, इसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है आप वो कर लीजिएगा। 7.5 8.5 बहुत बड़े नंबर नहीं आते, हाँ लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है बाबू। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना वो सेपरेट वीडियो रहेगा, तो आप कभी भी उसको देखेंगे तो आप एक साथ देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, रेशनलाइजेशन, ये दो चीजें अभी इस चैप्टर में बाकी नहीं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।